अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? यू ऑल आर फाइन? वेरी गुड। बच्चों, कल हमने कुछ न्यू वर्ड सीखे थे, याद है आपको? आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किए थे, अपनी टीचर को बताया था। वेरी नाइस, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ स्टोरी टेलिंग करूंगी। आप लोगों को स्टोरी सुनने में मजा आता है? आप लोग अपनी ग्रैंड मदर से स्टोरी सुनते हैं? वेरी गुड। चलें, आज मैं भी आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ। आपको पता है, इस स्टोरी में हमें पता चलेगा कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लीडरशिप संभाल ली थी, तो तब उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। ठीक है, चलें अब आप मेरी स्टोरी को गौर से सुनिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was the Prophet sallallahu alaihi wasallam best friend. After the death of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Muslims selected him as a leader. On the first day, as the leader of the Muslims, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu came out of his house with a roll of cloth. The first person he met in the street was Hazrat Umar, who was also very close to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Where are you going? Hazrat Umar asked to Hazrat Abu Bakr Siddiq. Hazrat Abu Bakr replied, Wa alaikum assalam. I am going to the market as usual. I will sell the clothes as I always had. Hazrat Umar explained, but now you are a leader of all the Muslims of the world. You should take care of the Muslims. Who will take care of the Muslims if you go to the market? Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu understood the point, but something came to his mind. He asked, how I will feed my family if I will spend all the time taking care of others? Hazrat Umar accompanied Hazrat Abu Bakr and they both went to meet the rest of the leaders of the Muslims. They had a meeting. It was decided that Hazrat Abu Bakr Siddiq will be paid some money to earn his family. Hazrat Abu Bakr made sure that he only took the money that he needed to buy food for his family. The money he got was so little that his wife couldn't even cook a sweet dish. Now Hazrat Abu Bakr sat in the Masjid an-Nabawi. He was busy solving problems of the Muslims. Suddenly the news came. Some rich people have decided not to pay zakat to the government. Zakat is the money collected from the rich people and given to the poor one. The leader of the Muslim has to collect the zakat money from the rich every year and then give it to the poor. Hazrat Abu Bakr was very soft and gentleman. He hated fighting. He even fed the people who cursed him. He never hit or abused anyone. The news of some rich people not giving zakat to Hazrat Abu Bakr surprised everyone. His friends thought Hazrat Abu Bakr Siddiq is very soft.
he will not do anything. He will just stay silent about this. Everyone was surprised when they heard Hazrat Abu Bakr say, Allah and His Prophet ordered us to collect zakat from the rich one. We all have to follow the rules given to us by Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He sent a messenger to the rich family who had refused to pay zakat. The rich people still refused. Instead, they got ready to fight. They gathered an army. For that as well, Hazrat Abu Bakr ordered the Muslim army to get ready for the battle. His friends advised him not to fight on this matter. You are still new. Let's wait for few months and then you can have this fight. They told him Hazrat Abu Bakr knew what he has to do. I must follow the orders of Allah and Prophet no matter what happens. With that, he sent the army to collect zakat from the rich. The rich got scared when they saw the Muslim army coming. They said sorry and agreed to pay zakat. Hazrat Abu Bakr forgave them and gave money collected from the rich to the poor. तो कैसी लगी आपको स्टोरी? मज़ा आया आप लोगों को? आपको पता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट फ्रेंड थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे तो मुसलमानों को सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? लीडरशिप का चैलेंज था। तो तमाम साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने डिसाइड किया कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना लीडर बनाएंगे। इस तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक तमाम मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उन सब मुस्लिम्स के लीडर बन गए। लीडरशिप संभालने के बाद नेक्स्ट डे हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो कि यानी कि तिजारत करते थे, अपना कपड़ा ख़रीदते थे और वो मार्केट में जाकर सोल्ड आउट करते थे और इसी तरीके से वो अपनी फैमिली को फीड करते थे। तो वो अपने रोज़मर्रा के काम पर जब जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिल गए। आपने देखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा कुछ नहीं करते, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मगर मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कोई गाड़ी वगैरह नहीं ली, बल्कि वो वही काम करते थे जो वो डेली रूटीन में करते थे। ठीक है, तो हज़रत उमर ने उन्हें देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो मुस्लिम लीडर हैं, आपको तो मुसलमानों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये ही करूँगा तो मैं अपनी फैमिली को कैसे फीड करवाऊँगा? तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि तमाम सहाबे कराम ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में ये तय पाया कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बैतुल माल होता है उसमें से कुछ रकम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को दी जाएगी ताकि वो अपनी फैमिली को खिला पिला सकें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बहुत थोड़े से पैसे अपने लिए मुकर्रर करे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक बैठे थे तो उन्हें खबर मिली कि बहुत सारे लोग ज़कात पे नहीं कर रहे। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि वो अब क्या करें। उन्होंने उन लोगों को जो रिच पीपल थे उन्हें लेटर्स भी लिखे कि आप ज़कात पे करें ताकि पुअर और नीडी पीपल की हेल्प की जा सके, मगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद क्या हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो जिहाद की तैयारी करें।
इस तरीके से जब वो मुस्लिम आर्मी जिहाद के लिए उन लोगों की तरफ जाने लगी तो वो लोग डर गए, खौफज़दा हो गए और उन्होंने क्या किया, फ़ौरन से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि अब वो हमेशा और डेली बेसिस पर वो ज़कात को पे करेंगे ताकि आप पूरी तरीके से नीडी और पुअर पीपल की हेल्प कर सकें। ठीक है, कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अब आप लोगों ने ये स्टोरी किस तरीके से मुस्लिम लीडर्स किस तरीके से अपनी लाइफ गुजारते थे, बिल्कुल सिंपल, ये आप लोगों ने डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स से और अपनी टीचर से। ठीक है, चलें आज हम ऐसा करते हैं, कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं। आपको पता है आप भी डेली कुछ न्यू वर्ड सीखना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप उन न्यू वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, क्या नेम है उस चैप्टर का? द राइट डिसीजन। द राइट डिसीजन, रीड विद मी, द राइट decision. One more time, the right decision. Very good. इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि जब लीडरशिप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने संभाल ली थी तो उसके बाद उन्हें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और उन्होंने किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया था। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट some new words. So read with me. Making decision, making decision, making decision. Very good. One more time. Making decision. आपको पता है मेकिंग डिसीजन का क्या मतलब होता है? यानी किसी भी वक्त डिसीजन लेना। आपको पता है आप जब सारे बहन भाई जमा होते हैं आप लोग, तो आप लोगों को समझ नहीं आता कि आप लोग कौन सा गेम खेलें। एक भाई कह रहा होता है भाई मुझे क्रिकेट खेलना है, तो दूसरा भाई कह रहा होता है कि मुझे फुटबॉल खेलना है, तीसरा कह रहा होता है नहीं मैं तो कैरम खेलना चाहता हूँ। तो आप लोग सब कंफ्यूज रहते हैं, आप लोग को समझ नहीं आती कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उसी वक्त हम फिर देखते हैं, सोचते हैं कि कौन सा गेम हमें खेलना है, जो हम ऐसा गेम कोई खेलें जो सबके लिए अच्छा हो, जैसे ज़्यादा गर्मी वाला भी ना हो कि गर्मी में हमें बाहर जाकर खेलना पड़े, मौसम को देखकर और हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उन सब चीज़ों को देखकर हम एक फैसला करते हैं, हम एक डिसीजन लेते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? मेकिंग डिसीजन। और उसमें फिर सबकी राय शामिल करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? मेकिंग डिसीजन। मेकिंग डिसीजन। वेरी गुड। द नेक्स्ट वर्ड इज ज़कात। ज़कात, रीड विद मी, ज़कात। वेरी गुड। वन मोर टाइम, ज़कात। वेरी नाइस। आपको पता है ज़कात की क्या मीनिंग होती है? ज़कात से यानी कि जो हमारे पास जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, यानी आपके फादर के पास जो जो चीज़ें हैं, उनके जो जो बैंक बैलेंस होता है, तो उस बैंक बैलेंस में से थोड़ा सा हिस्सा हम पुअर पीपल को देते हैं। ये इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा है। इस्लाम ने अमीर और गरीब को बराबर के हुकूक दिए हैं। तो इसीलिए जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी होती है, पैसे होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो थोड़ा सा अपने माल में से कुछ हिस्सा निकाल कर गरीबों की मदद करें, ताकि सब अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकें। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? ज़कात। नाउ curse, curse, read with me, curse, curse. Very good. Curse means bad words, bad words. ठीक है, हमें किसी के साथ भी बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए।
क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं और हम अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम अवॉइड करते हैं ऐसे वर्ड्स जो हमें नहीं बोलने चाहिए। ठीक है? कर्स का मतलब है बैड वर्ड्स। We don't have to talk any bad words. Okay? Now the next word is abuse. Abuse. Very good. Abuse means bad behavior. आप कभी बदसलूकी कर जाते हैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ, कभी आपने उन्हें ज़ोर से उनको जवाब दिया, नहीं ना, नहीं करते ना आप लोग। यू आर अ गुड चाइल्ड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो हमें बुजुर्गों का अदब करना चाहिए, हमें उनके साथ अब्यूज लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है? इसी तरीके से जो पुअर पीपल होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, उन सब का हमें ख्याल रखना चाहिए। हमें किसी के साथ भी अब्यूज वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। ओके? दीज आर द फ्यू न्यू वर्ड्स जो कि आज हमने सीखे हैं और हम किस तरीके से उसे डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है? इन तमाम वर्ड्स को अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठ के डिस्कस करना है। ठीक है? फिर आपकी टीचर आपके साथ डिस्कस करेंगी और वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगी। ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।